Hello. Hello. Yes, sir. थोड़ा रिप्लाई देते रहना कंटिन्यूस क्योंकि यहाँ पे काम पड़े. ओके, कम ऑन. कनेक्ट माइक पेन. ओके, मैं राइटिंग जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है ना? यस सर. हाँ सर दिख रहा. ओके, तो पर्टिकुलरली आज हम लोग देखेंगे पर काइनेटिक्स देखेंगे पूरी एंजाइम्स की, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम आया है एमएम वाली इक्वेशंस में. किन किन लोगों को मिकेलिस मेंटेन वाले इक्वेशंस में के क्वेश्चंस में दिक्कत आती है एक बार +1 करने. गुड नंबर. सिर्फ 6 लोगों को दिक्कत है क्या? हेलो. हेलो. यस सर. वैसे क्या Yes, sir. एंजाइम काइनेटिक्स में लोड नहीं होता है? होता है सर. तो फिर सर मैंने कोई मोबाइल से लॉगिन किया ना, तो बार बार +1 करने में दिक्कत होती है. ठीक है, रिप्लाई कर दिया करो. चलो आओ, यहाँ पर हम लोग देखो टॉपिक्स. इस टॉपिक में पर्टिकुलरली विल सी लॉट्स ऑफ थिंग. विल सी द टाइप्स ऑफ एंजाइम. ओके, मैं बेसिक से लूंगा कि बहुत लोग ज्यादा कुछ पता नहीं है. सो टाइप्स ऑफ एंजाइम, विल सी द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम. ओके, how it is there, then different types of enzymes which are related to food. Okay, then okay, तो particularly यहाँ से क्या एक 2 marks क्वेश्चन आता है sure. Okay, so we need to see particularly different domains. और चलो शुरू करते हैं. देखो types of enzyme role 6 types of enzyme होते हैं. Oxidoreductase, from the name itself you can tell what will it will do. It will just participate in the oxidation reduction. First of all, tell me one thing. What is enzyme? बायो वाले बंदे ज्यादा एक्टिव होने चाहिए क्योंकि उनका सब्जेक्ट है. Sir, enzymes are basically protein which Okay. are catalyze the reactions. How? How they will catalyze the reactions? Yeah, biocatalyst ठीक है, लेकिन how? Sir, by lowering the potential कुछ था energy. Lowering by down lowering the the activation energy, or by making them choose a path that will allow them to use low activation energy. exactly right. So low activation energy is the main. Particularly जो path, yeah, whatever she said is correct only, lowering the activation energy. So if activation energy is lowered, the particular thing will convert, the substrate will convert to the product. ठीक है, ultimately वही हम लोगों का main task है. ठीक है, आज थोड़ा एनर्जी डाउन रहेगा, सो कोऑपरेट. ओके, नाउ पर्टिकुलर इट इज प्रोटीन एंड इट इज कैटलिस्ट. ओके, तो इसमें होता है 2 टाइप. एक होता है एक्टिव साइट एंड अनदर इज व्हिच साइट? टेल मी हाउ मेनी साइट्स आर देयर? 2 sites, active site and substrate site. या, सो दोस 2 साइट्स आर इंपॉर्टेंट. चलो अब हम लोग वो साइट्स कहाँ इंपॉर्टेंट है जब हम लोग देखेंगे कॉम्पिटेंस आता है, जब पर्टिकुलरली एंजाइम इनहिबिटर्स लिया आता है तब देखना होगा उसको. ठीक है, नाउ कम ऑन. So by the name itself, it is visible that oxidoreductase means the particular which participates in the oxidation reduction of that particular thing. For example, fat oxidation, lipid oxidation होता है ना. Hello.
हाँ सर। जैसे कैटालिसिस होता है, दे आर ऑक्सीडोरिडक्टेस. फॉर एग्जांपल दे डिग्रेड H2O2 into H2O and oxygen. सुना है ना H2O2? What is H2O2? Hydrogen peroxide. हाइड्रोजन पेरोक्साइड. It is strong oxidizing agent. Yes or no? यस सर. It is a preservative or not? यस सर, इट इज प्रिजर्वेटिव. Where it is widely used? क्या सर? कहाँ यूज होता है? वाइडली, बहुत ज्यादा यूज होता है H2O2. Can anyone tell me? Sir, antimicrobial agent. अरे वो तो है ही, लेकिन कहाँ यूज होता है? Oxidizing the cells and breaking the cells like that. एसेप्टिक पैकेजिंग के टाइम में जब हम लोग कार्डबोर्ड Yes, होता है sir. ना, CBRs, उनको स्टेरिलाइज करने के लिए यूज होता है. As it is very volatile, it will go out also. So it will kill all the microorganisms and it will also evaporate. So it will not come in the contact of the food. Majorly नहीं आता, ठीक है? ये ध्यान रखना. तो it's a H2O2 catalyze करवाता है, catalysis आ रहा है. So now next is particularly lysis. Lysis मतलब lytics, okay, which breaks the bonds, okay, and create, except hydrolysis. Hydrolysis and oxidation are also kind of lytic, but उसके लिए special cases हैं वहाँ पर. जो break bond करते हैं, like proteolytic in nature, lipolytic in nature, so they are lytic in nature. Okay, next is transferase. Transferase जो group donor donate करता है particular to the acceptor, like glucosyl transferase used in polysaccharide synthesis, like particularly different types of polysaccharides like starch is there, उनके synthesis का टाइम में यूज होता है. बायोकेमिस्ट्री वाले लोगों को बहुत पता है, हम लोग इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं कभी, क्योंकि अभी आगे जाके एक चार्ट आएगा, कल आएगा वो, ठीक है, तुम लोगों के पास शेयर हो जाएगा, लाइक सेम एज माइक्रोबायोलॉजी. तो वहां पर दे रखा है कि पर्टिकुलरली कौन सा एंजाइम कौन सी कैटेगरी में. आई विल जस्ट राइट OTLI LG लाइक दैट. मैंने सब कैटेगरी बना रखी है. ये LG वाली कैटेगरी है, ये H वाली कैटेगरी, ये T वाली कैटेगरी, O वाली, ये LY वाली कैटेगरी और ये IAS वाली. So different categories I am writing there, particularly just हम लोगों ने वहाँ पे facultative aerobic, facultative anaerobic लिखा था ना, similar type of things we will be writing there. Clear? ठीक है? Yes. Yes, sir. और Yes, although sir. ये as some people have requested the because they can't join, so उन लोग के लिए रिकॉर्ड हो रहा था, ये रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगा, हम लोग घास पे रिवाइज कर सकते हो. चलो कम बैक, ठीक है. तो पर्टिकुलरली कोई भी एंजाइम एक्टिवेट, मतलब एंजाइम एक्टिविटी पता है ना, व्हाट इज एंजाइम एक्टिविटी? अरे भाई बोलो, अरे गलत ही बोलो लेकिन बोलो एटलीस्ट. Enzyme substrate The formation. reaction of substrate and enzyme. एंजाइम एक्टिविटी पर्टिकुलरली कि कितना अच्छे से वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल रहा है, दैट इज कॉल्ड एंजाइम एक्टिविटी. यही हुआ ना? हाँ सर. Yes, sir. इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था यार, ठीक है. तो ये एंजाइम डिपेंड, इसकी एक्टिविटी किस पर, चार फैक्टर पर डिपेंड करती है, मेजरली 4 फैक्टर्स. ओके, रिमेंबर दोस 4 फैक्टर्स. अब ये देखते हैं कौन कौन से फैक्टर और कहाँ पर क्या ऑप्टिमम. देखो हम लोगों ने बहुत जगह पढ़ा होगा, एक सेकंड अभी डायरेक्टली ये शो नहीं करते हैं. रेनिन का नाम सुना है यार? कुछ तो लोड है. Yes, sir. हाँ, सर इट्स एंजाइम ऑफ रेनेट. एक सेकंड मैं आंसर कर रहा हूँ. ये कुछ लोड आ रहा है यहाँ पे, पेन बहुत स्लो चल रहा है. देखो स्क्रीन दिख रहा है क्या अभी? Yes sir. यस सर. Yes, sir. ठीक है, देखो. सो पर्टिकुलर पहला सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर. सो एक सेकंड, हम लोग कहाँ बात कर रहे हैं? रेनिन की बात कर रहे थे ना.
Hello. Yes. Yes, sir. So renin is which kind of enzyme? अरे बोलिए जल्दी. catalase. लाइटिक एक्शन फॉलो करता है कि नहीं ये? Yes, sir. हाई एनर्जी चाहिए भाई लोग. कम ऑन. Yes, sir. Lyase is Yes, not sir. there. लाइटिक होगा. रेनिन और पेप्सिन दोनों आता है ना. मतलब इसके अंदर कौन कौन सा होता है? हाँ सर, प्रोटियोलाइटिक होगा. कौन कौन से एंजाइम होते हैं इसके अंदर? पेप्सिन और रेनिन. renin. So it's a rennet. Okay, rennet. Which one is responsible for cutting of bone and which one is for coagulation? Can you even tell me? Sir, renin is for coagulation and pepin is for For peptide bond breaking. proteolysis. Yes, sir. Yeah, peptide bond breaking. So this particular pepsin will go and attack on which casein? Kappa casein. Correct. So हम लोग वहां पर पढ़े होंगे तुम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर रखते हैं 37 डिग्री सेल्सियस. हाँ या ना? 37 या 42 डिग्री सेल्सियस रेंज में. हाँ सर. Yes, sir. पीएच भी रखते हैं. हाँ या ना? 4.6. Yes, Yes, sir. sir. So why pH is important, especially for protein based source? क्योंकि वहां पे आ जाएगा तुम्हारा IS. ISP पता है सबको? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. तो something is related with that only. हम लोगों को डीप में भी जाने की जरूरत नहीं, हम लोगों को काम करना है. ठीक है. तो दिस उस चीजों को कनेक्ट करके यहाँ पर सब कुछ डिसाइड होता है. नाउ कम बैक. देखो अब हम लोग क्या बोलते हैं टेम्परेचर. से टेम्परेचर से क्या बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है. अगर टेम्परेचर तुम्हारा कम है तो तुम्हारा कम एक्टिविटी होगी और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा एक्टिविटी होगी. वो आगे हम लोग एक्टिवेशन रेट वगैरह सब पढ़ के देखेंगे हम लोग आगे. ठीक है. सो पर्टिकुलरली टेम्परेचर विच वेरी इंपॉर्टेंट. देखो यहाँ पर बट यहाँ पर एक पॉइंट भी लिखा है. देखो अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा क्योंकि एंजाइम्स आर व्हाट प्रोटीन ओनली ना. हायर टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचुरेट होता है, प्रोटीन डीनेचुरेट होता है कि नहीं? हाँ सर होता है. तो एंजाइम में डीनेचुरेट तो होगा. सेम थिंग. तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वो बेस्ट एक्टिविटी देता है. जैसे सम एंजाइम्स आर वेरी गुड एट 37 to 42 डिग्री सेल्सियस लाइक पेप्सिन, रेनिन. ओके ठीक है. नेक्स्ट इज पीएच. अभी जस्ट बात की हम लोग. ठीक है. क्लियर. तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर वेरी गुड एट what to say something low acid to न्यूट्रलिटी. जैसे मिल्क में हम लोग 4.7 4.8 बोलते हैं ना. मीडियम एसिड या एसिड से तो जनरली वो प्रेफर होता है. ठीक है. कम नेक्स्ट एंजाइम कंसंट्रेशन. सो अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन ही कम है तो पर्टिकुलरली तुम्हारा एक्टिविटी कम होगा ना. जैसे पर्टिकुलर सबसेट बहुत ज्यादा है. अभी हम लोग आगे देखेंगे, अच्छे से देखेंगे. ओके डोंट टू वरी. ये आपके स्लाइड्स में जो शेयर है वो इनफ है. जस्ट रीड इट वंस यू विल अंडरस्टैंड. एक बार पढ़ना. कुछ डाउट है क्या तुमको ये पॉइंट्स? if there then I can explain. Just read it once. नेक्स्ट में समझाता हूँ. ये वाला थर्ड वाला एंजाइम कंसंट्रेशन में कोई डाउट है किसी को? हेलो. No, sir. नहीं ना. किसी को है डाउट? No, sir. नो सर. ज्यादा एंजाइम कंसंट्रेशन एंजाइम कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ज्यादा अच्छा रेट होगा. क्लियर है? ओके. अब देखो ये पॉइंट ना, ये पॉइंट में समझाता हूँ. ओके ठीक है. अब हम लोग बहुत से लोग सिर्फ सेमी मॉक और फुल मॉक दिए हैं, बहुत से लोग कम नहीं दिए. हम लोग शुरू में बताया था कि अगर हम लोग एक ही दिन में, अगर मैं तुमको बोलूं, अगर मैं तुमको एक दिन में बोलूं कि आप तुम 2 मॉक देना, 2 फुल मॉक देना. ठीक है. या मैं बोलूं एक दिन में तुमको 4 फुल मॉक देना, या बोलूं तुमको एक दिन में 1 फुल मॉक देना. ओके. एंड इफ आई आस्क यू तो क्या हो रहा है? ठीक है. तो चलो तुम्हारा एनर्जी एक का है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा रेट होगा अच्छे से. ओके तेजी से भागेगा. लेकिन कैन यू गिव द मतलब तुम्हारा स्कोर किस टाइम पे स्कोर गिर जाएगा या एफिशिएंसी या एक्यूरेसी गिर जाएगी अगर मैं आगे जाके और 6 फुल मॉक का.
बताओ। यहाँ पे तुम्हारा स्कोर या एफिशिएंसी है और यहाँ पे तेरा नंबर ऑफ मॉक्स है। बोलो। अरे जस्ट गेस मार लो यार, गलत होगा तो मैं होना। सर कम होता जाएगा एफिशिएंसी। अगर हम लोग नंबर ऑफ मॉक्स बढ़ते जाएंगे तो एक टाइम पे आएगा। जैसे अगर 2 मॉक में तुम्हारा एफिशिएंसी बहुत अच्छा है, एक दिन में 2 तो दे सकते हो, वो तुम्हारा बेस्ट एफिशिएंसी। एक से तुम्हारा नेट प्रैक्टिस हो गया, दूसरे से अच्छे स्कोर मार लिया। लेकिन आगे जाओगे तो उस टाइम पे आके सैचुरेट हो जाएगा, तुम अपने आप में सैचुरेट हो जाओगे, फिर गिर पे जाएगा। हाँ या ना? यस सर, गिरेगा, एग्जॉस्शन। सैचुरेट हो जाएगा, तुम एकदम सैचुरेट एग्जॉस्ट हो जाओगे। एक ही चीज पे आके बार बार तुम रुक ही जाओगे, कुछ होगा ही नहीं आगे। तो दैट इज द थिंग कि ओवरडोज में कोई चीज होगी तो लोड होगा। तो यही था बस। देखो ये ग्राफ है ना पब्लिक, क्योंकि Yes, तुम्हारी एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है। हाँ या ना? देखो यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको? यस सर। अदर्स सो गए लगता है मेरे को। अरे हाँ या ना? 1-2 लोग ही बोलते हैं, बाकी सब तो Yes, सब sir. है। यार रिवीजन क्लासेस तुम लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है। मैं तो गेट यू दे दूंगा। आई एम ऑलरेडी इन स्टेबल पोजीशन, तुम लोगों को एक्टिव रहना है। हेलो Yes, sir. यार, यस आई वांट टू हियर एटलीस्ट 10 वॉइसेस। लग रहा है 4 लोग ही पढ़ रहे हैं, बाकी सब बैठे। ऐसा होगा तो फिर रिवीजन क्लासेस कंडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस आर गुड स्टूडेंट, दे आर ओनली जिनके मार्क्स आ रहे हैं। क्या करना है, अगली बार से क्लास रखना है या नहीं रखना है? रखना है सर। रखना है सर, बिल्कुल। हाँ, तो फिर यार आंसर दिया करो कम, क्योंकि यहाँ एनर्जी जमा हो जाती है। ठीक है, चलो आप अब हम लोग देखते हैं पर्टिकुलर जिस चीज के लिए हम लोग बैठे हैं पर आज। तो पेन का भी अलग लोड है यार। रुको मैं माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड ही शेयर कर दूं। बोर्ड दिख रहा है क्या? हाँ सर। यस सर, दिख रहा है। Yes, sir. चलो ये से काम है। सो टेल मी वन, ठीक है। so, कोई भी पर्टिकुलर देखो एंजाइम होती है, सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, और उससे क्या होता है, देखो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट बनता है। अभी कुछ लोग बीच में ना कूदे, रुकिए पहले सुनिए उसके बाद देखना। और क्या बनाता है प्रोडक्ट, ये हम लोग बात हुई थी ना, यहाँ पे जो इसी चीज को बोलते हैं एंजाइम एक्टिविटी। हाँ या ना? यस सर। Yeah, ठीक है, sir. लेकिन टिपिकली अंदर जाके देखते हैं समथिंग डिफरेंट। इस E प्लस S और उसके बीच बाद में कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये टूटने के बाद ही बनता है तुम्हारा प्रोडक्ट। कि अल्टीमेटली हमको क्या पता है, एंजाइम नेवर पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। हाँ या ना? हेलो, यस सर। एंजाइम जस्ट मेक इट फास्टर। ओके, तो आखिरी में जितना एंजाइम तुमने उसमें डाला वो आखिरी में मिलना चाहिए, दैट इज द पर्टिकुलर कैटेगरी। ओके, नाउ कम हियर के ये जैसे K1 से टूट रहा, मतलब ES बना रहा है, तो K-1 से वापस से ब्रेक हो रहा है। दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, ये रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल लिनेज। ओके, नाउ कम हियर पर्टिकुलरली एक चीज ध्यान रखना, ये चीज हम लोग अब देखो स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट डेटा हम कहाँ सुनिए एक बार मैं बता दूं। हीट ट्रांसफर में सुनिए, हाँ या ना? यस सर, Yes, sir. स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। यस सर। मोमेंटम ट्रांसफर में सुना है? हाँ सर, वहां पे सुनिए। फिर जो लोग थर्मोडायनामिक्स से वो लोग SFE सॉल्व करते होंगे। हाँ sir. Yes. यस सर। यस सर। ठीक है, जाना पे इतना टाइम लग रहा है ना? हाँ सर। तो Yes. स्टेडी स्टेट में पर्टिकुलरली क्या है हम लोगों का Yes. कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES is equal to rate of formation of
नहीं, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ऑफ ईएस। ठीक है, अब देखो हम लोग का जो मेन एंजाइम एक्टिविटी है ना वो यहाँ होती है कि कितना तेजी से ये तुम्हारा टूटेगा टू फॉर्म द प्रोडक्ट K2। तो K2 इज अवर मेन। ओके, अब आगे हम बात करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को इम्पोर्टेंस है फॉर्मूला का एप्लीकेशन, फॉर्मूला कैसे यूज करना है, सब वही क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये पॉइंट पे बहुत पूछा जाता है, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, इस पॉइंट पे क्या होता है, ये दोनों चीजें इक्विलिब्रियम होता है। इस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, स्टेटमेंट 1 दिस, स्टेटमेंट 2 दिस, स्टेटमेंट 1 2 इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ऐसे करके घुमा फिरा के मारेंगे, निकाल लोगे ना ये तो। सर एक बार K1 K2 का बताना सर डिफरेंस। देखो K1 is the rate of formation of ES, okay? Okay sir. And K minus 1 is, it is K minus 1 is the rate of dissociation of ES. Enzyme substrate complex. This is the transient state, okay? Clear? Okay sir. हाँ सर। Others? अरे जनता बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नाउ नेक्स्ट इज कि देखो पर्टिकुलरली एक भाई साहब थे मिकेलिस मेंटल करके, दो लोग थे, ठीक है। उनने ये पूरा तबाही मचाया था, उन्होंने क्या कहा हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आओ चलो, अब पर्टिकुलरली यहाँ पे होता है प्रोडक्ट और यहाँ पे सबस्ट्रेट और एंजाइम भाई साहब आते हैं, वो काम करवाते हैं। देखो अब ज्यादा सबस्ट्रेट होगा तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? हाँ सर। अब देखो, Yes, sir. अब एक टाइम पे आके सैचुरेट होने लग जाएगा। वाई कोई बोल सकता है क्या? सर बिकॉज़ एंजाइम का सारा एक्टिव concentration साइट फुल हो जाएगा, एंजाइम के सारे एक्टिव साइट सैचुरेटेड हो जाएगा। यस, एंजाइम इज फुल्ली पैक्ड, हाँ या ना? अब एक्टिव साइट फ्लोसीट है, हमको पता है, पैक्ड मतलब जो यूज अंडर यूज है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा है नहीं कि वो ज्यादा सबसेट को देख पाए, क्लियर है? हाँ सर, yes sir. ठीक है। अब एक तुम लोग एक मैं पूरा पीडीएफ भेजूंगा, नोट्स का बिना टेंशन मत लो, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं कंसंट्रेशन के रूप में कि हम लोग जो भी डील करेंगे कंसंट्रेशन के रूप में ही डील करेंगे, क्लियर है? हेलो, यस सर। अब Yes, यहाँ पे sir. देखेंगे हम लोग टाइम, ओके, विद इन द टाइम। तो टाइम के अकॉर्डिंग मतलब विद इन द टाइम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डिक्रीजेस और इंक्रीजेस? डिक्रीज होता है, हाँ या ना? किसी को कोई लोड है इसमें? नो सर। No, sir. अरे समझ में आया? सबस्ट्रेट का Yes, कंसंट्रेशन sir. डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। व्हाट अबाउट प्रोडक्ट? इंक्रीज होगा। अरे हाँ या ना? Yes, हाँ, sir. sir. Yes, sir. व्हाट अबाउट एंजाइम? पहले घटेगा फिर यहाँ पे आके हल्का सा बढ़ेगा और रुक जाएगा, हाँ या ना? यस हाँ सर। सर। देखो एक टाइम पे तीनों लाइन पैरेलल होगी कि नहीं? अरे देखो Yes, यहाँ sir. पर ये पैरेलल हो रहा है ना? Yes, हाँ, sir. sir. Yes, sir. तो ये लाइन पैरेलल होगी कि नहीं? इसमें एक क्वेश्चन है, इसलिए पूछ रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, ओके। नेट का क्वेश्चन है ये, एक्सेल वाले ध्यान दीजिए थोड़ा। अब चलो ये तीन तो हो गया, अब व्हाट अबाउट ईएस? ईएस का बढ़ेगा कि घटेगा? ये कांस्टेंट रहेगा। देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होके बताऊंगा मैं तो। अरे थोड़ा पार्टिसिपेट करो, बढ़ेगा कि घटेगा? चलो देखते हैं, वापस इक्वेशन लिखता हूं, E plus S ES then it gives to E plus P,
K1 K-1 एंड K2। बोलिए ES का कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि घटेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या First बढ़ेगा फिर increase. घटेगा? सर फर्स्ट Constant में नहीं बढ़ेगा रहेगा, फिर घटेगा। ओके देखो जो लोग बोले वो थोड़ा गलत है। फर्स्ट इट विल इंक्रीज देन इट विल बिकम कांस्टेंट। अरे देखो भाई साहब स्टेडी स्टेट में Yes, हम sir. क्या बोल रहे हैं, सेम रेट से बढ़ेगा और सेम रेट से घटेगा, पर पहले तो बढ़ेगा ना, कुछ बढ़ेगा फिर आके कांस्टेंट रेट पे आ जाएंगे, तो कांस्टेंट रेट पे घट रहा है, कांस्टेंट रेट पे घट रहा है, सेम रेट पे बढ़ रहा है, सेम पे घट रहा है, तो कांस्टेंट ही हो जाएगा ना ये तो बात। अरे हाँ या ना? Yes, हाँ sir. सर, इक्विलिब्रियम। भाई Yes, तो sir. चारों हाँ, लाइन sir. पैरेलल है कि नहीं? यस सर। एक Yes, क्वेश्चन sir. ये था। दूसरा क्वेश्चन था कि एंजाइम सबसेट का जो इंटरमीडिएट है वो क्या पाथ फॉलो करेगा? फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस देन ओनली इंक्रीजेस, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, और फर्स्ट इंक्रीजेस देन रिमेन्स कांस्टेंट। अब निकाल ले जाओगे ना? हेलो, हाँ सर। Yes, sir. ग्रीन वाला लाइन ES का है, येलो लाइन वाला E का है, ठीक है? तो सेम कंसेप्ट एंजाइम के लिए, पहले डिक्रीज होगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, ये ग्राफ sir. का क्वेश्चन निकाल Yes, लोगे sir. तुम लोग, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, हाँ या ना? हाँ हाँ सर. सर। अरे आवाज नहीं आई मेरे को ज्यादा लोगों की। हाँ सर। यस हाँ सर। सर. एक बार +1 कर देना चैट बॉक्स में जो लोग नहीं बोल पा रहे। नीड टू सी हाउ मेनी आर अलाइव हियर। ठीक है चलो बहुत लोग हैं। ठीक है क्लियर है, आगे बढ़े चले हाँ सर। पब्लिक। ठीक है अब भाई साहब एक Yes, आए sir. थे मिकेलिस मेंटेन, क्यों आए केस लिए आए पता नहीं, पर आए हैं, हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है चलो। सो देखो अभी पर उससे पहले एक कुछ टर्म्स है, टर्नओवर नंबर। ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, ये भी रिसेंटली पूछा हुआ है कहीं। ओके तो क्या है ये नंबर, कोई बता सकता है? एक्सेल वाले बंदे जो पढ़े होंगे, एक्सी वाले तो शायद नहीं पढ़े होंगे, एक्सेल वाले बताइए, बायोकेमिस्ट्री जिनका है। देखो इसका डेफिनेशन सीधा पूछा हुआ था टर्नओवर नंबर का। ये क्या है ना, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट that can be converted to product, okay, of catalytic site per second। पर सेकेंड मतलब ये रेट हुआ कि नहीं? बोलिए। हाँ सर। Yes, sir. क्वेश्चन ये था कि भाई इसका यूनिट क्या था, खत्म। यूनिट क्या है? Per second. अरे पर सेकेंड था नहीं, मोल्स पर सेकेंड। सबस्ट्रेट। हाँ अरे हाँ या ना? फालतू का Yes, +1 sir. था ये, हल्का वाला रद्दी सवाल। मैं बोलता हूँ ना क्लास में रद्दी सवाल, ये था। क्लियर है? ओके यस सर। Yes, sir. चलो Yes, sir. अब आओ हम लोग पर्टिकुलर उसमें नहीं जाएंगे, डेरिवेशन में। मिकेलिस मेंटेन इक्वेशन उस पे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग वही देखेंगे। v इक्वल टू काले पेंसिल, so v नॉट। ओके व्हाट इज v नॉट? बात करते हैं सब, अभी सब बात करेंगे। पहले सबको डिफाइन कर लेते हैं कौन क्या चीज है क्या नहीं। ओके हेलो Okay, sir. यस हेलो यस सर। ठीक है, v नॉट इज नथिंग, इज द वेलोसिटी और रेट, ओके, ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन पर यूनिट टाइम। मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। ठीक है तो ज्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे। मिकेलिस मेंटेन के इक्वेशन है VMS। किसी को इक्वेशन याद है नीचे क्या होता है? सर Km+S। Km+S. ओके सर
देखो अभी हम लोग एक चीज देखें जिससे तुम्हारा पिछला सबसेट वाला ग्राफ है ना वो क्लियर हो जाए। ओके, अभी ये ध्यान रखना। आओ इधर आओ। हेलो, Yes, sir. ठीक है। अब देखो Yes, ध्यान से कि कंसंट्रेशन अगर तुम्हारी बहुत ज्यादा होगी, हाई अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, नोट्स आएगा प्रॉपरली, यहाँ पर आप समझ लीजिए, नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगा तो तुम्हारा V इंडिपेंडेंट ऑफ S होगा, होगा कि नहीं, वो एक बार चेक कर लो। देखो ध्यान से, अरे यार ये इसको नीचे ले जाओ, S से S मर गया, S यहाँ है, ये 0 तरफ चले गया तो Vm हो गया ना सीधा। yes, sir. Yes, sir. अब कंसंट्रेशन तुम्हारी सबस्ट्रेट की बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ओके, ठीक है। अभी हम लोग आगे एक चीज देखते थे, मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, सब ध्यान देखना, मैं ये हटा, पहले ये हटा देता हूँ, ये दिस इज यूजलेस। अभी हम लोग ने स्लाइड्स में देखा था कि अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, ओके, यहाँ आके एक टाइम पे रुक जाता है, हाँ या ना? अगर सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है ना, हाँ या ना? Sir. Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, हाँ, sir. sir. Yes, sir. नहीं आवाज नहीं आई, देखो ध्यान से देखो। तो यहाँ पर अगर जितना अमाउंट ये है उतना अमाउंट पे ये बन रहा है, सेम अमाउंट, तो जीरो ऑर्डर बनता है। यहाँ मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा हाई कंसंट्रेशन होता है देन योर V फॉलोज जीरो ऑर्डर, ओके, जीरो ऑर्डर। सीधा काइनेटिक्स में पूछा हुआ है कि अगर हायर कंसंट्रेशन हो तो एंजाइम कौन सा काइनेटिक्स फॉलो करेगा, तो जीरो ऑर्डर, याद रखना, हायर कंसंट्रेशन में जीरो ऑर्डर। क्लियर है, याद रहेगा पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. देखो इसको दो तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कान को सीधा पकड़ो या हाथ घुमा के पकड़ो, कान ही पकड़ रहे हो ना, कोई बात नहीं। हायर कंसंट्रेशन ऑफ, किसी का माइक ऑन है, ध्यान रखिए, लीड्स टू rate is independent of substrate concentration, ठीक है, ओके, और it follows zero order kinetics। क्लियर? मतलब जो तुम्हारा V है ना वो V max के बराबर ही होगा। क्लियर है? Yes, sir. अदर्स? Yes, sir. Yes, sir. जनता? और अगर लो कंसंट्रेशन होगा तब वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। क्लियर है? कुछ तो है नहीं यार, वो सीधा है। तो जो तुम्हारा V है वो प्रोपोर्शनल टू S होगा, ठीक है? अरे हाँ है ना पब्लिक? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ये दो पॉइंट आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? तो देखो ऐसा होता है, ये और ये तुम्हारा यहाँ पे जाके आगे रुक जाता है, तो ये जीरो ऑर्डर वाला हो जाता है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर। बोला ना प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये इक्वेशन होगी ना, y इक्वल टू mx। अरे हाँ है ना? हाँ, sir. हाँ, sir. चले आगे। क्लियर है? कोई किसी को Yes. डाउट है? अरे डाउट है? No, sir. No, sir. ठीक है, अब देखो हम लोग का इक्वेशन क्या था यहाँ पे, v नॉट इक्वल टू हाउ मच, vm इज नथिंग, v max ओनली, ओके। Yes, मैं sir. vm लिख रहा हूँ इनटू s अपॉन km प्लस s। अब देखो कभी कभी एक लोग पूछते थे व्हाट इज km, km कुछ नहीं है, k माइनस 1 प्लस k2 अपॉन k1। अब देखो इसको याद करने के लिए कुछ बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर क्या होगा, -1 होगा, ये होगा। आसान भाषा में देखना, es
इधर किससे टूट रहा है, K2 से। इधर किससे बन रहा है, K-1 से। इधर किससे टूट रहा है, इधर किससे K1 से बन रहा है और K-1 से टूट रहा है। हाँ या ना? हाँ हेलो, सर। Yes, sir. हाँ सर। सिंपल, यस सर। टूटना अपन जोड़ना, खत्म। ठीक है, टूट किस किस रेट से रहा है, K2 प्लस K-1 और नीचे K1 से जुड़ रहा है। हाँ या ना? यस सर। T Yes, बाय sir. J। अब कंफ्यूज मत होना, बहुत लोग कंफ्यूज होके फॉर्मूले में तुमको यहाँ -1 और यहाँ +1 मिलेगा तो कुछ अंधे घोड़े वहीं पे मार के लगा के आएंगे, वो नहीं करना है। क्लियर है? अरे हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। Clear. याद रहेगा ना? हाँ सर। पहले तोड़ेंगे sir. फिर जोड़ेंगे। ठीक है, चलो आओ। अबे याद रहेगा ना सबको? मैं यस अगले सर। टेस्ट में Yes, पूछूंगा। sir. Yes, sir. Yes, sir. राधिका, डोंट नीड टू वरी, साइड्स में आ जाएगा। दैट पर्टिकुलर नंबर इज नथिंग, इट इज दैट नंबर इज, क्या बोला था मैंने नंबर, पब्लिक याद है? टर्नओवर नंबर। यस। Sir, turnover number. चलो आओ। हेलो, आए। अब देखो, एक डबल लाइन वेवियर वर्क प्लॉट, इस पे क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोगों के इसमें लाइन वर्क प्लॉट। ठीक है, अब क्या करना, कभी कंफ्यूज हो ना तुम लोग, सीधा सीधा दिमाग लगाना। ये इक्वेशन तो तुमको याद होगी ना? कंफ्यूज हो, दैट इज सिंपली इट इज 1/V0 वर्सेस 1/S का प्लॉट होता है। तो हम लोग यहाँ से 1/V0 और 1/S का इक्वेशन बना सकते हैं। हाँ या ना? अरे बना सकते हाँ हो ना? सर। हाँ सर। देखो क्या करना है, इसको ही नीचे भेज दो, इसको ऊपर भेज दो, इसको नीचे ले आओ। तो 1/, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, 1/V0 ये वापस इधर ले आओ। और ये क्या तुम्हारा था, Km प्लस S अपॉन Vm इंटू S। ठीक है, 1/V0 इक्वल टू क्या हो गया, Km अपॉन Vm इंटू 1/S प्लस 1/Km अपॉन Vm। अरे हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. क्लियर है? यस अब सर। सीधा पूछते हैं कि स्लोप क्या है। ये स्लोप है, नहीं कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग। क्या गड़बड़ है? अरे ये थोड़ी होगा। 1/Vm होगा। यार मतलब तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। क्लियर है? हाँ सर। देखो हाँ, अब मैं ग्राफ बना रहा yes, हूँ, sir. अब मेरे को हेल्प करना है। नहीं चलो नए पेज पे ग्राफ बनाते हैं। ओके, क्या इक्वेशन था, 1/V0 इक्वल टू 1/Vm प्लस Km अपॉन Vm इंटू 1/S। हाँ या ना? सही है ना? सही लिख रहा हूँ मैं? Yes, sir. अब देखो ग्राफ ये होगा। अब एट S इक्वल टू 0, एट S इक्वल टू 0, S इक्वल टू 0 पे ये टर्म 0। हाँ या ना? यस सर। तो 1/V0 देखो ग्राफ ऐसा है, 1/V0 वर्सेस 1/S0। तो एट 1/S इक्वल टू 0, 1/S इक्वल टू 0 पे 1/V0 क्या हो जाएगा, 1/Vm। हाँ या ना? यस सर। तो ये इंटरफेस Yes, sir. तुम्हारा इंटरसेप्ट 1/Vm। अरे पेन आज बहुत लोड दे रहा है। ठीक है, 1/Vm। अब एट V0 ये 1/V0 0 कहाँ होगा? ठीक है, तो 1/V0 0 पे क्या है, ये 0। ठीक है, दिस इज 0, तो ये हम उधर गया 1/Vm माइनस का इक्वल टू Km अपॉन Vm इंटू 1/S। ये Vm घर गया 1/Km, तो माइनस 1/Km इक्वल टू 1/S। हाँ या ना? माइनस मतलब यहाँ पर हाँ यस सर।
बस यही तो था, यही लाइन है। अब उन लोगों ने क्या पूछ रखा है, इसका स्लोप। व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस? Km by Vm। ये देखो, ये स्लोप है, दिख रहा है ना? हाँ सर। व्हाट Yes, इज इंटरसेप्ट ऑफ दिस? यहाँ पे, ठीक है। अरे कुछ बोलो यार। यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पर कब किस कंसेंट, मतलब कब तुम्हारा वेलोसिटी जीरो होगा, एट व्हाट कंसंट्रेशन? 1 बाय -1 बाय ऑफ Km। तो Km रिलेशन निकालते हैं, वो रखते हैं। अब तुम ये इक्वेशन, तुमको डेरिवेटिव, इस इक्वेशन तोड़ना आना चाहिए, खत्म। You need to know how to break down this particular equation, particular problem solve। स्टेटमेंट को आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर लोगे, वैसा होना चाहिए। यस सर। ठीक है। हेलो, यस सर। पब्लिक, Yes, sir. मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, नो वरीज, सब क्लियर होगा आपका। 2, 3 या 4 क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से ही, 1-2 क्वेश्चन आपके मिकलिस मेंटन इक्वेशन से आए हुए हैं। सो ये चीजें क्लियर है हर किसी को? yes, sir. Yes, sir. पब्लिक, Yes, sir. Yes, sir. Yes. देखो, अब आ जाओ तुम एंजाइम इनहिबिशन पे। इनहिबिशन, अब देखो पर्टिकुलर इनहिबिशन क्या होता है, किसी को पता है? अरे सर बोलो यार, इनहिबिटिंग गलत। एंजाइम एक्टिविटी। सर जो रिएक्शन को फॉरवर्ड जाने में इनहिबिट करते हैं। रिएक्शन, एनीथिंग, पर्टिकुलर रिएक्शन छोड़ो, एंजाइम है। जैसे अब सुनो, गवर्नमेंट क्या करती है ना, जैसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत सारे लोग, अब तुम भी प्रोटेस्ट कर रहे हो, आईआईटी खड़गपुर को बोल रहे हो कि, मतलब आईआईटी काउंसिल को बोल रहे हो कि गेट पोस्ट मत करो। जो तुम 100 लोग रोड पे उतरे, तुम दंगा करने लग गए, पुलिस 50 को या 80 लोगों को जेल में डाल दी। अब 20 लोग कुछ नहीं करना, कुछ कर सकते हैं क्या ज्यादा? इतना इम्पैक्ट डाल सकते जितना 100 लोग इम्पैक्ट डालेंगे? नो सर। अरे डाल पाएंगे, 20 लोग उतना इम्पैक्ट No, डाल sir. पाएंगे जितना 100 लोग इम्पैक्ट डालेंगे? आया ना? नो सर, नो सर। नो No, सर। sir. अरे तो जो पुलिस है वो इनहिबिटिंग एजेंट है, और तुम लोग एंजाइम्स हो। 80 लोगों को बाहर निकल दिया इधर, तो दे आर इनहिबिटेड, खत्म। समझ में आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. तो Yes, जो sir. एक्टिव साइट है ना, वहां पर ये एंजाइम इनहिबिट्स हो जाते हैं। अब जैसे 2 टाइप के होते हैं, मैं पुलिस वाला एग्जांपल इसलिए लिया ताकि तुमको समझ में आए। अब जैसे पर्टिकुलर किसी आदमी को जेल में डाला तो 2 टाइप से होता है। एक, उसको बहुत दिनों के लिए कारावास, मतलब जेल में रख दिया, या फिर बेल हो जाती है। बेल हुई, बंदा वापस यहाँ पे ज्वाइन किया, तो दिस इज रिवर्सिबल इन नेचर। हाँ या ना? यस सर। अब Yes, जिसको sir. 7 साल की जेल हो गई, भाई साहब तो वहीं बैठे रहे, कोई आने जिंदगी वाला है, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज इरिवर्सिबल। क्लियर है? यस सर। Yes, अब sir. कुछ होते हैं इस पार्टी के, उस पार्टी के, तो सब वो अपन बात करेंगे आगे। यहाँ तक कोई डाउट? इनहिबिशन समझ में आ No, गया? sir. भूलोगे Yes, तो sir. नहीं ना अब तो? हाँ सर। No, sir. नहीं सर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये बहुत ही इजीएस्ट एग्जांपल है याद करने की, तो मतलब समझने की। ठीक है, पुलिस वाला एग्जांपल ले लो। क्लियर है? आगे बढ़े। Yes, sir. चलो अगला एग्जांपल है, मतलब अगला पर्टिकुलर देखो। अब एंजाइम इनहिबिशन 2 टाइप से होता है, हम लोग देख लिए। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, किसी को डाउट है? No, sir. नो। सो इनहिबिटर्स आर ऑफ 2 No, sir. टाइप्स। एक होता है तुम्हारा रिवर्सिबल, एक होता है तुम्हारा इरिवर्सिबल। अब ये क्या करता है ना, पर्टिकुलरली ये एंजाइम एक्टिविटी घटाता है। हाँ या ना? मतलब एंजाइम एक्टिविटी कैसे घटेगी? नंबर ऑफ एंजाइम्स अवेलेबल वो कम हो जाएंगे। हाँ या ना? फॉर द रिएक्शंस और कैटालिसिस करने के लिए। क्लियर है ना? अभी देखे थे हम लोग इम्पैक्ट वाला। हाँ सर। ठीक हाँ, है। सर। अरे आवाज ही नहीं आई मेरे को, 4 लोग ही हाँ हाँ बोल रहे हैं बस। गर्ल्स पावर दिखाओ यार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सो पर्टिकुलरली कहा था मैं, हाँ यहाँ। सो एंजाइम पर्टिकुलरली तुम क्या करेगी यहाँ पर? अब ये 3 टाइप से होते हैं। ओके, कॉम्पिटिटिव, अभी आगे स्लाइड ही ना अपने वही यूज करते हैं। देखो, एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव।
देखो नॉन कॉम्पिटिटिव में लिख रखा है मिक्स इनहिबिशन। और अब यहाँ पे अब ये क्या करेंगे, पर्टिकुलरली किसी भी एक्टिविटी को क्या है, हम लोग बात किए थे दो चीजें, एक एंजाइम एक्टिविटी फैक्टर वो डिक्रीज करता है और एक केएम पे अफेक्ट करता है। ओके, केएम पे अफेक्ट करेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ये होगा। अब देखो अगर तुम्हारा केएम बढ़ गया, केएम बढ़ गया, केएम बढ़ा, यहां से यहां आया, आगे आया, ठीक है, तो तुम्हारा वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी तो अभी भी 0 है। हेलो, यस सर। लेकिन एट कम कंसंट्रेशन पे भी तुम्हारा इनहिबिशन हो जाएगा, दैट इट मींस। ओके, और Vmax तुम्हारा अफेक्ट होगा क्या, विल योर Vmax विल बी अफेक्टेड, Vmax यहाँ पर है, याद है ना, नहीं Km होगा सर। 1/Vm, तुम्हारा Vm अफेक्टेड हुआ, ये देखो यहाँ अभी भी कट तो वही कर रहा है ना। हेलो, यस सर। यस तो सर। क्या चीजें अफेक्ट Yes, होगी, देखो sir. स्टेटमेंट यहाँ से बनता है, क्या अफेक्ट हुआ है, इनहिबिशन कॉम्पिटिटिव में तुम्हारा क्या अफेक्ट होगा। तो एक याद रखना, CKM, CKM, ओके, कॉम्पिटिटिव में सिर्फ KM अफेक्ट होगा, क्लियर है। ओके सर। हेलो, यस सर। Yes, sir. यस सर। अब देखो दूसरा है अनकॉम्पिटिटिव, यहाँ पे होता है UV, अनकॉम्पिटिटिव में Vmax अफेक्ट होता है, क्लियर है। यस सर। हेलो, Yes, यस sir. सर। यस सर। अभी तक कितने टर्म बोली है, CKM और UV, CKM। अब इसको तुम कुछ बॉलीवुड वाला टर्म बना लेना, इतना मेरे को टाइम नहीं था कि मैं मतलब कुछ बनाऊं तगड़ा सा, आई जस्ट रिमेम्बर्ड लाइक दिस, CKM UV। ओके, ये हमेशा याद रखना, UV तुमको याद कर सकता हूँ, UV में अनकॉम्पिटिटिव में तुम्हारा Vmax रिड्यूस होगा तो घटेगा। ओके, हेलो, यस सर। यस सर। तुमको कुछ कुछ टर्म्स बनानी पड़ेगी, या फिर मैं जब चार्ट बनाऊंगा तो वहां पे कुछ टर्म डाल दूंगा मैं, ठीक है, आई विल ट्राई टू मेक सम। ओके, सो ये याद रखना, ये ग्राफ से तुमको देखना। अब देखो पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, Km रिड्यूस हो रहा है, Km रिड्यूस हो रहा है मतलब जो Km रिड्यूस हो रहा है, ध्यान से देखना, Km इज रिड्यूसिंग, तो 1/Km बढ़ेगा, हाँ या ना, अरे हाँ या ना। हाँ, sir. हाँ सर। Yes, sir. हाँ हाँ Yes, हाँ। sir. अगर 1/Km बढ़ेगा तो किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, नेगेटिव साइड में बढ़ेगा, यहाँ से इधर आ गया वो, हाँ या ना। हाँ, हाँ sir. सर। अगर यहाँ से इधर गया तो तुम्हारा Vmax पे अफेक्ट होगा ना, पहले Vmax यहाँ था, Vmax क्या हो गया, 1/Vm बढ़ गया, 1/Vm बढ़ा, तो टर्म्स 1/Vm बढ़ रही तो Vm क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। घटेगा। रुको, तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो। Reduce. एक सेकेंड, देखो ध्यान से सुनना, Km अफेक्ट होगा कि नहीं होगा UV में, यस सर। देखो इसको ऐसे याद रखना है तुमको, पर्टिकुलर बता रहा हूँ, Km तो अफेक्ट होगा, ओके, सिर्फ दो जगह नहीं होगा, बाकी जगह देखो मैं UV इसलिए बोल रहा हूँ, उसका कंडीशन कहाँ भाग रहा है भाई, देखो UV वेलोसिटी अफेक्ट होगा तो कैसे अफेक्ट होगा वो ध्यान रखना। अब 1/Km, अब तुम्हारा Vm बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा, Vm is getting reduced, Vm is reducing, so overall 1/Vm is increasing, 1/Vm is increasing, तो ये ध्यान रखना। ये अब ये तुम्हारा है तो यहाँ पे ये Vm आ गया, ये यहाँ पे इनिशियली 1/Km था, दिस इज स्मॉलर, दिस इज बिगर, ये बड़ा है, ये बड़ा है मतलब Km भी घटा हो, सो बोथ आर रिड्यूसिंग, Km एंड Vm बोथ आर रिड्यूसिंग। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तुमको डायग्राम याद रखना है, ठीक है। हेलो, Yes, sir. हाँ तीनों डायग्राम याद रख लो, Yes, खत्म हो sir. जाएगा, तुमको कुछ ट्रिक्स याद करने की जरूरत नहीं है, डायग्राम शुड बी, यू शुड बाय हार्ट द डायग्राम्स, कैसे करना है, ठीक है, यू नीड टू फाइंड आउट दैट। और मैं कुछ आई ट्राई टू मेक, जब चार्ट्स बनाएंगे उस टाइम पे और इसी टाइम सोचेंगे कुछ, ठीक है। मेरे बहुत टाइम हो Okay, गया, sir. 2 साल हो गए इसको, क्या हो रहा है।
चलो ये वाला टर्म हो गया खत्म। विल सी अनदर थिंग्स। काइनेटिक्स के क्वेश्चंस हम लोग सेकंड हाफ में करेंगे क्योंकि उस टाइम पे कुछ और बंदे आ जाएंगे। हेलो। ओके सर। Yes, sir. Yes, अब sir. बाकी तो ये है ही, ये चीजें देखना है तुमको, कौन सा कहाँ यूज होता है। इसके लिए चार्ट बन रहे हैं याद करने के लिए, जस्ट लाइक दैट हम लोग लास्ट टाइम देखे थे ना, आंध्र प्रदेश बस कॉर्पोरेशन वगैरह वगैरह। सिमिलर हम लोग इसमें कुछ ट्रिक्स से मैं बता दूंगा, ठीक है। ये चीजें तुमको पता है कौन कौन Okay, sir. कहाँ यूज होता है, ये याद नहीं करने हैं हम लोग को, याद करने हैं पर्टिकुलरली ये कि कौन क्या करता है। ओके, विच इज द फंक्शन ऑफ व्हाट एंड व्हाट। जैसे अल्फा अमाइलेज क्या करता है, कैन एनीवन टेल मी व्हाट अल्फा अमाइलेज डज? इट ब्रेक्स स्टार्च इनटू व्हाट? Breaks starch. इनटू Into डेक्सिन। amylose and amylopectin. अरे अल्फा अमाइलेज स्टार्च को डेक्सिन ग्लूकोज में सर। बदलता है और फिर आगे फ्रक्टोज में चेंज करता है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ sir. Yes, sir. ठीक है। और व्हाट अबाउट बीटा अमाइलेज? मॉल्टोस में ब्रेक करता है। माल्टोस में। बस ये फंक्शंस याद रखने हैं तुमको, बस बाकी कुछ नहीं है यार। आधे लोग खाली अल्फा बीटा में कंफ्यूज होते हैं, बाकी सब जगह वो लोग मार लेते। प्रोटीन ये देख लेंगे वो देख लेंगे। दिस लाइक ब्रीविंग इंडस्ट्री। तो ऐसे सब के मैं चार्ट्स बनाया हूँ, इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, मे बी प्रोबेबली आज रात में हो जाना चाहिए या कल तक तो हो ही जाए, ठीक है। तो ये सब तुमको मिल सर जाएगा। हेलो हाँ बोलिए सरकार। सर। सर मेरा एक डाउट था इसमें। हाँ पूछिए। सर ये सैकरिफाइंग और लिक्विफाइंग एंजाइम क्या होते हैं, और मतलब सर वो कौन से सैकरिफाइंग है और कौन से लिक्विफाइंग है? देखो सैकरिफिकेशन में क्या होता है ना, सैकरिफाइंग में, अब देखो सैकरिफिकेशन, अब एक चीज पढ़ना, बियर बनती है, हम लोग उसमें क्या यूज करते हैं? बार्ले, हाँ है ना? यस हाँ सर, सर। बार्ले करते हैं। हाँ सर। बार्ले में क्या होता है तुम्हारा? स्टार्च, ठीक है। कभी देखा है तुमने स्टार्च को डायरेक्टली अल्कोहल में ब्रेक होते हुए? नहीं अल्कोहल सर, वो कैसे पहले बनता है? सिंपलर शुगर में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज से अल्कोहल जाता है पहले ना, सर वो, यस सर यस सर। ओके। ग्लूकोज या फिर कोई सिमिलर फॉर्म्स में फ्रक्टोज वगैरह से। तो स्टार्च का जो ब्रेकडाउन होगा, ओके, टू स्मॉलर यूनिट्स, वहां, तो तुम शुगर में कन्वर्ट कर रहे हो, स्मॉलर शुगर एलिमेंट्स में, दैट इज कॉल्ड सैकरिफिकेशन। जैसे अल्फा अमाइलेज बीटा अमाइलेज, दे आर सैकरिफाइंग एजेंट्स। सैकरी मींस शुगर, ओके सर। पॉलीसैकेराइड बोलते हैं ना, पॉली शुगर। मोनोसैकेराइड मींस मोनो बट सर शुगर। ये दोनों में से कोई एक लिक्विफाइंग भी है ना? हाँ हाँ, वो डिपेंड्स करता है यूज में। हेलो। कैसे सर? यूज पर डिपेंड करेगा। मैं अब जब मैं आगे पढ़ाऊंगा ना सेकंड क्लास में, यही देखने वाले हैं हम लोग, यही चीजें ही देखेंगे हम लोग सेकंड क्लास में, ओके। ओके हेलो। सर। ओके सर। ये ब्रीविंग इंडस्ट्रीज वगैरह वगैरह के वो उसमें पूरा अच्छे से बता दूंगा, नो वरीज, डोंट नीड टू गेट टेंशन दैट, ठीक है। एंजाइम में फंसाता है, एंजाइम में क्वेश्चन आता है, क्लियर है? हाँ सर। एक क्वेश्चन पूछूं? यस सर। let me, I'll type it. हेलो। अरे हो के नहीं तो चल दिए। यस यस सर। Yes, sir. काइमोसाइन क्या है? व्हाट काइमोसाइन डस? सर मिल्क want- में कोआगुलेशन को बंद करता है सर। हाँ, कुछ रेनेट के साथ कुछ रिलेशन है सर, मिल्क कोआगुलेशन और चीज मेकिंग। particularly chymosin is used in cheese industries, okay। हाँ है ना, मैं बहुत बार यूज किया हूँ काइमोसाइन, याद है ना? हाँ सर। तो वो मिल्क को कोआगुलेट भी करता है, राइपनिंग टाइम भी घटाता है और फ्लेवर डेवलपमेंट भी करता है। ऑल द थ्री आर रिस्पांसिबल फॉर दैट, क्लियर है? यस सर। हाँ सर। ओके सर। अब एक क्वेश्चन, हाँ पूछो। कोई पूछने क्वेश्चन पूछ रहा था क्या?
हेलो, ऑडिबल? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Your voice is breaking, sir. नेटवर्क का लोड आ गया है आखिर। कोई क्वेश्चन करना है? कपल ऑफ क्वेश्चन शैल वी डू? Okay, sir. मैं Yes, रैपिड sir. क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स के ऊपर। तुम्हारे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखेगा, ध्यान से देखिए। देखा? हाँ जो सर। भी आंसर है आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। Okay, 16 people said B. हेलो, क्या Yes, आंसर sir. दिया? Lipases, sir. ओके, कम ऑन। यहाँ आपको कहाँ दिखेगा फॉस्फेटियस? ढूंढिए फटाफट। Hydrolase. Sir, hydrolase. Hydrolase. ये गेट का क्वेश्चन था जो अभी था ना। अब देखो हाइड्रोलाइसिस वाली कैटेगरी में लाइपेसिस था कि नहीं? दिख रहा कहीं पर लाइपेसिस हाइड्रोलाइसिस में? Yes, sir. Yes, sir. वो नियरेस्ट है। ओके, अगर आपको सेम कैटेगरी या सेम ग्रुप नहीं मिलता है तो आप उसी के अंदर वाले नियरेस्ट में देख लो, आपको मिल जाएगा। तो इट्स राइट आंसर। ओके, चलो कुछ तो यार, कुछ लोगों ने तो दिमाग लगाया होगा कि ये तो होता नहीं, ये होता नहीं है, ये होगा। समटाइम्स इट्स गुड टू गो फॉर अ रॉन्ग आंसर, डिसेलेक्टिंग मतलब डिलीटिंग द रॉन्ग आंसर इन प्लेस ऑफ फाइंडिंग द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो अभी रैपिड में कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया इसलिए वो टॉपिक वो क्वेश्चन उठाया हूं मैं। इज इट विजिबल द क्वेश्चन? चेंज हुआ है क्वेश्चन? इज इट विजिबल गाइस? Yes, sir. क्विकली इसका भी आंसर बी होना चाहिए। Yes, sir. व्हाई? कैन एनीवन टेल मी? अरे बोल दो यार। अरे आंसर बी बोल रहे हो तो कोई बोल भी दो। व्हाई? If you are writing a correct answer, then you should know why. What is the reason? Varshit? यस सर। क्या हुआ, भाग गया था क्या? हाँ सर, कब बाहर हुआ अभी इसलिए। चलो बताओ आंसर। अरे यार अभी जस्ट बात की हम लोग बीटा अमाइलेज।
चलो आओ, बीटा ये माइनस वाला है सर। ये क्वेश्चन देखो। देखो तुम जल्दी आंसर दोगे तो मैं 8-10 क्वेश्चन और करवाऊंगा, ये तो मैं अभी बंद कर दूंगा, फिर शाम को करेंगे क्लास। अभी क्वेश्चन सर करना है शाम या को है शाम को? क्लास? या इट्स देयर, शाम को शायद हम लोग सर शाम को करते हैं ना? अरे रुक भाई, बाकी लोग भी तो है। कम ऑन, विल डू 2 more ठीक है questions. सर। देखो हर ईयर में एक क्वेश्चन है एंजाइम्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली मत लेना एंजाइम्स। Till now 15 people have given the answer. हो गया? क्या आंसर होगा? B. अरे क्या आंसर होगा पब्लिक? B. B. बी सर। अमाइलेस का पी का आंसर क्या होगा? माल्टोस पी का 4, खत्म। 4 क्यू ठीक का है, चलो आओ Yes, ये वाला देता हूँ, जो हम लोगों ने अभी टॉपिक पढ़े वही देखना है। ये सब तो आत्मा ज्ञान था जो सबको पता था। ठीक है आओ, देखो क्या दे रखा है वीमेक्स। अच्छा एक बार तुम ट्राई करोगे कि मैं करूँ सॉल्व? ट्राई करते हैं सर। करो यार, कुछ नहीं है, फॉर्मूले में पुट करके आंसर आना है। ये गेट का 2 मार्क्स क्वेश्चन, वाई देंगे आई डोंट नो। लेकिन द क्वेश्चन विच विल बी इन द नेक्स्ट टेस्ट इट विल बी टफ, सो बी रेडी फॉर दैट। उसमें थोड़ा मिकेलिस मेंटिन विद इनहिबिशन घुसाया है, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू गिवन द लास्ट टेस्ट? उसका एक बार +1 करना जो लोग दिए हैं। चलो रुको अभी मत करो, मैं बोलूंगा तुमको। +1 सर आंसर 64। विल कैलकुलेट। जो भी आंसर आप चैट बॉक्स में डालिए। बहुत ही रद्दी क्वेश्चन आते हैं, सो चलो सॉल्व करें। मेरा बोलो पब्लिक। यस सर। Yes, sir. देखो कौन सी इक्वेशन है, v नॉट इक्वल टू vm इंटू s अपॉन km प्लस s, ये लगेगी ना। हाँ सर। तो vm क्या दे रखा है तुमको? 160 इंटू s 40 अपॉन km 60 प्लस 40, तो ये 64 और ये 100, तो 64 100 अपॉन 100 64। अब ये कुछ नहीं था, रद्दी सवाल था, और +2। ठीक है, अब अगला देखो, ये भी वैसा ही है, फालतू क्वेश्चंस कर लोगे ना इस टाइप के, सिंपल मजदूरी। ज्यादा टफ रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें। Yes, sir. क्वेश्चन टफ कहाँ आएंगे? जब स्टेटमेंट आएगा कि कॉम्पिटिटिव हुआ तो क्या होगा। कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, केम घटता है या बढ़ता है? अरे बोलो।
देखो 3 ग्राफ है, Increase. 3 ग्राफ है, हम लोग अभी देखे थे 3 ग्राफ थे। तो भाई यार ये पेन भी बड़ा गंदा चल रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, ठीक है, ये आगे जा रहा है, मतलब 1/km घट रहा है, हाँ ना? तो मतलब km बढ़ रहा है। एक ये ग्राफ है, दूसरा ग्राफ तुम्हारा ये है पैरेलल, और तीसरा ग्राफ क्या था? व्हाट वाज द थर्ड ग्राफ? कि km वही रहेगा और vm घट जाएगा, 1/vm घट जाएगा। यही था ना थर्ड ग्राफ? Yes, sir. Yes, sir. आप बस ये तीनों ग्राफ याद कीजिए कैसे बनते हैं, उसके बाद आपको पता है कब कौन सा कहाँ होता है, खट से आंसर आएगा। नो नीड टू गो फॉर ब्लाइंडली मार्क, यूज द ग्राफ्स। हो गया सेंटेंस। क्लियर है पब्लिक? तीनों Yes, ग्राफ आप अभी काम कीजिए, क्लास के बाद एटलीस्ट 3 या 4 बार बनाइए ये बिना देखे, खट से आंसर आएगा। उसके बाद तुम हर किसी को मार्क डाउन कीजिए और लिखिए कि कब क्या डिक्रीज हो रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। यू विल नो। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब इससे तुमको टफेस्ट क्वेश्चन को नहीं पूछेगा, आपके सॉल्यूशन है। डोंट गो ब्लाइंडली, यूज द ग्राफ्स, दैट्स इट। क्लियर है? yes, sir. हो जाएंगे अब इसके Yes, प्रॉब्लम्स? sir. Yes, sir. आई होप अब निकाल ले जाओगे प्रॉब्लम्स। एंजाइम के प्रॉब्लम हो जाएंगे, बाकी चार्ट्स आएंगे, आपको चार्ट्स के थ्रू याद करना है बस, खाली बाकी कुछ नहीं है। और Yes, हर sir. साल क्वेश्चन आ रहा है, देखो मैं 2014 से क्वेश्चन उठाया हूँ, कंटिन्यू दे रहा हूँ एक क्वेश्चन। 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है, मैक्सिमम 2 मार्क्स के आते हैं। 1 मार्क्स का आएगा तो रद्दी क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन वो भी रद्दी आएगा, सिर्फ मजबूरी करवाएगा। और अगर स्टेटमेंट पूछा तो तुम स्टेटमेंट कहाँ से स्टेटमेंट आ सकते हैं मैंने बता दिया। एक कौन से नंबर पे आएगा? हेलो? turnover number. हाँ, देन अदर क्वेश्चन फ्रॉम द ग्राफ के तुम्हारा एंजाइम्स घट रहा है, बढ़ रहा है, सबस्ट्रेट बढ़ रहा है, घट रहा है, याद है? हेलो? Yes, sir. अरे पैरेलल वाला हाँ ग्राफ, सर। चारों ग्राफ पैरेलल जाते हैं, भूल गए? अभी तो पढ़ा था। Yes, sir. एक वो ग्राफ हो गया आपका, दूसरा ये है। बस इसी टाइप से वो क्वेश्चन ग्राफ बेस पे ही स्टेटमेंट क्वेश्चन आने वाले भाई, कहीं नहीं आने वाले। ठीक है, निकाल लोगे? हाँ, sir. Yes, sir. चलो फिर ऑल ओके, देन वी कैन एंड अप हियर। देन ऐसा होने से फिर मैं सेकंड क्लास में रेफ्रिजरेशन फ्रीजिंग उठाता हूँ। व्हाट डू यू गाइस से? Yes, sir. Yes, sir. एंजाइम हो Yes, sir. जाएगा आप तो? Yes, sir. Yes, sir. हो Yes, जाएगा. sir. Sir, tomorrow's class? अरे आज ही क्लास है भाई। अच्छा, अच्छा. Yes, sir. Okay, sir. चलो एक और क्वेश्चन करते जाओ, करना है? Yes, sir. Yes, sir. 2020 का क्वेश्चन है मेरे टाइम का। आ जाओ। देर नहीं लगनी चाहिए, एक झटके में अंदर आओ। इतना टाइम? अरे एक ही आंसर देखना है, उससे हो गया तुम्हारा।
ओके एवरीवन, क्लियर? Yes, sir. आ रहा है आंसर? कुछ नहीं देखना है यार। पैक्टिन देखो, सर, आ रहा है। पैक्टिन कैसे, पैक्टिन क्या है? पैक्टिन इज P3. पॉलीमर ऑफ, पैक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ पॉलीगैलेक्टोयूरेनिक एसिड, पॉलीगैलेक्टोयूरेनिक एसिड। ओके, सो गैलेक्टोयूरेनस ही होगा, खत्म। पी का 3 खट से अहमदाबाद, सब लोग अहमदाबाद ही मारे ना? Yes, sir. हो गया यार, अब क्या था, बाकी चीज की जरूरत है ही नहीं। देखो लैक्टोज, तो ये बीटा गैलेक्टोज है, दिख रहा है वहां पे। हेमिसेलुलोज आपका यहाँ पे आ जाता है, तो इट्स नथिंग यार, सिंपल में तुम्हारा आंसर आ रहा है, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं थी। अब देखो जाइलोस से होता है ये पूरा, तो जाइलेनेस यहाँ से भी देखते तो भी आपका हो जाता है। क्लियर है? Yes, sir. चलो ठीक है, एंजाइम खत्म।